So, okay, students. So, very good morning to all of you. And Good morning, good morning, sir. sir. Good morning, sir. Now we are going to start this continue addition of vectors we have seen. So now we will see the what the subtraction of vectors. Subtraction of two vectors. Okay, subtraction we will see directly. I am coming to that now. There's all these things we have studied. Collinear vector, zero vector, all those things. So addition and subtraction of vector in many of the properties of this we have already seen. Associative property, parallelogram law of vector addition, then polygon law of vector addition also we have seen. So now we will come to the subtraction of vectors. So this again I'm taking the help of the PPT prepared by Honorable Mani sir. So with this we will go and we will see the subtraction of vectors. So subtraction of vectors can be defined as the vector addition. जैसे हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ये भी समझ सकते हैं हम लोग कि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर है उसमें किसको ऐड करते हैं, नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली हियर आल्सो we will add a negative vector to a vector, positive vector. So subtraction of vector can Your voice is breaking. माइनस बी को क्या कर देंगे, what we will add, minus b we will add in vector a. A. So I think this recording is also going on. Yeah. So ये आपको समझने की बात है, राइट? तो ये देखिए एक वेक्टर a है हमारे पास. This is a vector a we have and this is a vector b. So now if we want to subtract vector b from vector a, that means we will have to find out the negative vector of b. So if b is indicating this side, so negative of b will indicate which side? Just you move it Opposite. with a 180 degree. अपोजिट साइड में आप 180 डिग्री घुमा दीजिए तो ये हो गया माइनस बी, बिकॉज इट इज बी ओनली. सो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट द डायरेक्शन हैज चेंज. सो एडिंग a with minus b is nothing but subtracting b from a. तो अब इसको यहां से आप उठा करके यहां ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए उठाया और यहां रख दिया. सो दिस इज नथिंग बट a माइनस बी. तो ये a माइनस बी हो गया और इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, वो वही निकलेगा बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हमारा r इज इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी बोलिए इसको, या यू कैन से दैट a माइनस बी directly you can say. So this is nothing but what, a minus b. और a plus b होता तो कहाँ आता, definitely ये यहाँ पर आ जाता because a b यहाँ पर होता हमारा. So b is here. So if we call this will be our resultant. ये r is equal to a plus b हो जाता, but now this is r is equal to a minus b. So this way we can understand. So this vector subtraction of two vectors. So a minus b is nothing but, so this is a plus b here, but we have to see the a minus b. So b was pointing out in this direction, so its negative is in that direction. तो हम लोग ऐसे हम कर सकते हैं इसको. तो इसमें हम ये कर सकते हैं. Now a minus b लिया, but if the same vector नेगेटिव हम ऐड करेंगे तो as we know that it will be a null vector. That's why we have defined null vector separately. ये हमारा इस तरह से हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो हमको always they will not be in either x direction or y direction. They will be somewhere in some Between them. x and y somewhere. जैसे मान लीजिए ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में भी नहीं है, somewhere between ईस्ट एंड नॉर्थ, तो हम बोलते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में है. तो हमको कई बार उनको रिजॉल्व करना पड़ता है कि एक्स पार्ट में उसका क्या हिस्सा होगा
और y पार्ट में कितना हिस्सा होगा. So that we call as the somewhat the resolution of vector. We resolve those vectors. So that resolution means nothing but the splitting up of that vector. हमें उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है वेक्टर को इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में हम अगर स्प्लिट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अंडरस्टूड. तो ये हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. तो अभी जस्ट एक बार आप देख लीजिए, दो वेक्टर्स हम यहाँ दिखा रहे हैं. अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, लेकिन किस टाइप का रिजोल्यूशन देखेंगे ये जस्ट हम देखते हैं. दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन मतलब वही रिजोल्यूशन कौन सा, जिसमें हम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स को, है ना. जस्ट अ मिनट. Okay, so first of all we will see the rectangular resolution. So the vector into which a given vector is split are called components of vector. तो जिसमें हम उसको रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, वो कंपोनेंट्स. और अगर हम उनको x और y डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो हम बोलेंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट. The component of vector in a given direction gives the measure of the effect of vector in that direction. जैसे बताया नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है वेक्टर, तो उसका इफेक्ट x डायरेक्शन में मतलब टुवर्ड्स ईस्ट कितना होगा और टुवर्ड्स नॉर्थ कितना होगा. सो वो हम निकालने के लिए इसको रिजॉल्व करते हैं. सो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन हम लोग देखते हैं, है ना. तो जस्ट सी, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज एंड वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो, एंड इट्स एप्लीकेशंस आर in vector algebra also, in daily life also हम लोग देखेंगे, बहुत सी applications इसकी daily life में होगी. So we can resolve a vector in terms of the component vectors that lie along unit vectors I and j. As I already told you, this I and j are the unit vectors along x and y direction. तो definitely resolution जो होगा वो इसी आधार पर होगा. सो हम ले लेते हैं एक वेक्टर. जनरली हम लोग ए वेक्टर से शुरू करते हैं. तो चलिए जनरली हम लोग ए वेक्टर हमने ले लिया. ए वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन बना लीजिए. अगर मेरे साथ साथ आप बना सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड. सो एक्स वाई प्लेन एक बना लेंगे हम लोग. ये एक्स वाई प्लेन हो गया. ओ एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. तो इन दिस प्लेन देयर इज अ वेक्टर ए हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं. दिस वेक्टर इज फ्रॉम दिस. तो ये ए वेक्टर दिखा दिया हमने. नाउ ए वेक्टर यहाँ पर है, तो इसका कुछ पार्ट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और ये वाई डायरेक्शन में कितना होगा, ये कंपोनेंट, ये हम इसकी सहायता से निकालते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो, यू कैन सी. सो हम लोग क्या करेंगे, एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा हुआ है बच्चों. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे. सो ड्रॉ लाइंस from the head of A perpendicular to the coordinate axis. मतलब यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए. ये देखिए. सो ड्रॉ इट वेरी नाइसली. ओके. सो डेफिनेटली सपोज दिस इज पॉइंट हियर. P कोई पॉइंट है मान लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे x y. तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस विल बी x एंड दिस डिस्टेंस विल बी y, राइट. और दिस डिस्टेंस इज y, एज यू नो ऑल, है ना. हम जानते ही ये चीज, तो है ना, इतना जानते हैं ना बच्चों आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो हम इस पॉइंट को यहाँ ले लिए. चलो, इस पॉइंट को लेने के बजाय हम इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको a1 ले लिए हैं, और इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको हम a2 मान लिए हैं, है ना. दिस इज सपोज द वेक्टर a2 इज पॉइंटिंग आउट इन y डायरेक्शन एंड a1 इन a डायरेक्शन. ओके. So we get vectors a1 and a2 such that this a1 plus a2 is equal to a. तो वो कैसे हो जाएगा बच्चों, a1 plus a2 is equal to a, because triangular law of vector addition हम पढ़ चुके हैं बच्चों. So this is a triangle. O मान लो ये पॉइंट हमारा, just I will remove this and then separately I can make it.
Suppose this is a point O and this is a point P, this is point Q. So in a triangle OPQ, what is this? Triangle OPQ में this is A1 and this is A2. अगर ये A2 है तो ये भी A2 होगा, definitely A2 होगा. So we can write by triangular law of addition that A1 plus A2 is equal to A. Can we write or not? By our triangular law of vector addition. Correct? Yes, sir. Okay. Though it is a right angle triangle, but this triangular law of vector addition is applicable to any type of triangle. It is a scalene or कैसा भी होगा, ये आपका right angle triangle होगा, isosceles होगा, कैसा भी होगा. So it is that. So now as since A1 is parallel to I and A2 is parallel to J, तो क्या A1 को हम I और J के फॉर्म में लिख सकते हैं? Definitely लिख सकते हैं. So you can name it as equation 1 and just now you write A1 in the form of this. So A1, vector A1 is equal to magnitude into its direction. So AX is the magnitude. ये AX हो गया, ये AX magnitude हो गया. यहाँ से यहाँ तक जाएंगे. जो मैंने X बोला था ना आपको, X distance बोला था, उसको यहाँ पर AX बोल रहे हैं लोग, है ना. तो सर ने AX बोल दिया तो AX भी बोल सकते हैं, नो इशू है ना. AX बोल दीजिए या X बोल दीजिए. तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने A1 बोला है तो डेफिनेटली इट विल बी AX into I cap. A2 will be AY. AY is the magnitude. यहाँ से यहाँ तक की distance AY है हमारी, है ना. This is the distance AY. So this AY into J, and where AX and AY are the real numbers, it will be real number. ये होगा 3 होगा, ये 4 होगा, कुछ भी हो सकता है. Understood बच्चों? तो just you substitute the values in equation 1. जल्दी से substitute कर दीजिए. A1 की जगह AXI and A2 की जगह पर AYJ. So you can write A is equal to AXI plus AYJ. So this तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं. I will remove this again so that you can see very nicely. So this is A2 is equal to AYJ and A1 is equal to AXI, where this O2, this P अगर मैं point दे रहा हूँ तो O से P तक की distance AX है और ये यहाँ तक मान लीजिए मैंने उसको पॉइंट और कुछ दे दिया, P है इसको और कुछ दे दिया. सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी AY है. तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. द क्वांटिटीज AX एंड AY आर कॉल्ड X and Y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A. वेक्टर A के ये AX, I और AY जो कंपोनेंट्स है और उसमें भी उन कंपोनेंट्स में AX और AY उनका मैग्नीट्यूड है. तो दिस वे वी कैन राइट A is equal to AXI plus AYJ, and this is called as the resolution of vector into the rectangular plane, है ना. Rectangular resolution of vectors in a plane. Understood this much? So इसको अगर आपने 1 दिया है तो इसको 2 ले लीजिए. Using 1 and 2 you can write this equation 3. Clear? Yes, sir. चलिए. Now अब लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कोई हमेशा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन थोड़ी होगा, हमें तो किसी भी तरह से रिजॉल्व करना पड़ सकता है. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. अब देखो मैंने इसलिए बोला है ना आपको, हमेशा कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी, कभी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, कभी मेंसुरेशन आ जाएगा. ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर दिस फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th. सो थॉरोली यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स. तो अभी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं हम और रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को. हम रेक्टेंगुलर नहीं, किसी भी तरह से हमको रिजॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे देखते हैं. सो यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वी कैन एक्सप्रेस AX and AY in terms of magnitude A and angle theta to make with the x axis. तो अभी तो रेक्टेंगुलर में किया था 90 डिग्री था, है ना, एंगल. लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो. तो अभी हमारा मान लीजिए इस तरह से हमने किया हुआ. पहले ट्रिग्नोमेट्री से ही हम रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन भी करेंगे और फिर बाद में दूसरी तरह से करते हैं. चलिए, तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं इस तरह के रिजोल्यूशन के लिए. AX और AY में रिजॉल्व हुआ है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग देख सकते हैं. दिस AX ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं, दिस AX ये हमारा A है टोटल, इसका मैग्नीट्यूड A है, इसका मैग्नीट्यूड AX है. तो चलिए OPQ अगर है ट्रायंगल तो बताइए cos थीटा होता है कि नहीं बच्चों. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट. This is base is AX and hypotenuse is A is equal to cos of the angle होता है. हेलो, देखो आवाज नहीं आ रही, मतलब भूल गए सब बच्चे शायद, मुझे लगता है. AX upon A, this is base and this is hypotenuse of this right triangle
OPQ, right angled at P. So do you know or not? Base upon hypotenuse is cos theta. Hello? हाँ. So AX upon A is equal to cos theta. So we can easily write AX is equal to A cos theta by cross multiplying. So this is a simple trigonometry से हम AX को इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो definitely AY को किस तरह से लिख सकेंगे बताइए जल्दी से. This is AY. This is AY. So this is also AY. So what will be AY? Can you tell me? AY equal to A sin theta. Very good, very good. That only I want. I want some motivation from है ना your side also. मुझे थोड़ा थोड़ा आप बताते जाएंगे तो it will motivate me और it will है ना बहुत उत्साह के साथ मुझे और पढ़ाने का इच्छा होगा. So ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो a component of vector can be positive, negative or zero depending upon angle theta. तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं. We can conclude that the component will be positive, can be negative. It all depends upon the angle theta, right? तो ये थीटा अगर हमारा हम जानते हैं कि 0 to 90 डिग्री इंक्रीज होता है साइन सॉरी हाँ और फिर डिक्रीज होता है 180 डिग्री तक. फिर 180 डिग्री से आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव में भी जाता है. तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन दैट AY की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. तो इसी को हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देखिए, so now we can have two ways to specify vector in a plane. It can be specified by its magnitude A and direction theta, है ना. इससे भी दिखा सकते हैं. देखो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड A और थीटा के फॉर्म में दिखा दिया इन कंपोनेंट्स को और इट्स कंपोनेंट्स AX और AY के रूप में भी हम दिखा सकते हैं. तो दोनों तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं. So that way it is there. तो ये हमारा ये हो गया. तो अब if we can change this, you add this 1 and 2, square both the sides of 1 and 2 and add them. So if you add these sides after squaring, what you will get? AX square plus AY square, and this will be A square cos square theta, and this will be A square sin square theta. So if you take A square common, easily you can write that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So you get A square is equal to AX square plus AY square. So in terms of trigonometry also हम लोगों ने यही मिल गया हमको कि A square is equal to AX square plus AY square. Or by using Pythagoras theorem also you can write it. This is AX square, this is AY. So AX square plus AY square is equal to this A square. Magnitude form है ना बच्चों? Or not? Yes, sir. तो इवन बाय सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है. और अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें बिकॉज AX एंड AY वी गॉट, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं. सो बोथ द वेज वी कैन राइट दिस थिंग. और इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू रूट ओवर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. तो एंड if we want to write in the form of theta, if we want to calculate, so theta can be easily calculated with this. Tan theta is equal to what? Tan theta will be equal to AY upon AX, this perpendicular upon this base. So AY and AX if you have, we can find out the angle theta. Okay, सही है बच्चों? Any doubt? Yes, in this? sir. So suppose this is 1 and this is root 3. So what will be the theta? This is 1 and this is root 3. 30 डिग्री. वेरी गुड. तो ये छोटी छोटी चीजें आप इजीली बता सकते हो बच्चों, है ना. चलिए ये 1 है, ये रूट 3 है. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ A? 4. सोच के बताओ भाई. रूट 4 इक्वल टू 2. रूट 4 मतलब 2. देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम इजीली बना सकते हैं. AX स्क्वायर मतलब ये रूट 3 का स्क्वायर हो गया, है ना. रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. So this will be under root 3 plus 1, that is root 4, and root 4 is nothing but 2. तो ऐसा देखिए तुरंत हम लोगों ने एक क्वेश्चन बना लिया. So this we have taken root 3, this we have taken 1. So easily you can find out the magnitude of A and magnitude of and angle also. So even you can find out the angle theta also by using tan theta. If you have A and AX, then you can use cos theta.
if you have ava and a, you can use sin theta, whatever you want you can use, और आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से we can very well do all these things। तो ये सब चीजें हैं आप लोग को अगर तो now we will resolve a resolution of a vector. A vector is given to us and we want to resolve it into two given vectors. They may not be a rectangular component, कोई दूसरे कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं, जनरली वैसे हम लोग वेक्टर्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर स्मॉल से लिख दिया है तो भी हम इसको ले लेंगे, नो इशू। एंड इन सम बुक्स यू विल फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जैसे हमने यहाँ लिया। तो सपोज दिस इज टेकन ए वेक्टर, राइट, दिस इज बी वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर है हमारा ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमारा बड़ा वेक्टर था, इसलिए सर ने भी ये जो छोटे वेक्टर्स हैं जिनमें हमको इस बड़े वेक्टर को रिजॉल्व करना है इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में, इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। पहले हमने वेक्टर ए को किस में रिजॉल्व किया था, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अभी हमें मान लीजिए रिजॉल्व कर रहा है एक वेक्टर को दिए गए दो वेक्टर्स के अलोंग। तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर स्मॉल बी इस डायरेक्शन में। तो वी वांट टू रिजॉल्व दिस इनटू द कंपोनेंट्स, इस फॉर्म में हमको रिजॉल्व करना है। तो कैसा करेंगे, जस्ट देख लीजिए, एक बात समझ लेंगे तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस। सो ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन obtained by multiplying a by a real number delta lambda। तो ये जो वेक्टर आया है ए, वो लेमड़ा का मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है, और ये जो दूसरा है उसको हमने म्यू ले लिया और उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मान लीजिए। सो हम क्या करेंगे उसके लिए, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ, ये हमने ओ से एक स्ट्रेट लाइन लेना है पैरेलल टू ए, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ना ये इस तरह से, तो डायरेक्शन वही होना चाहिए हमारा। सो वी विल टेक अ लाइन फ्रॉम हियर, यहाँ से एक लाइन लेंगे पैरेलल टू ए, ये देखिए लाइक दैट, यहाँ से। हाँ, इसको यहाँ पर लाके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। ओके, सो वी हैव टेकन दिस ए वेक्टर को, यहाँ से हमने क्या ले लिया, पैरेलल टू ए हमने ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन थ्रू पी, है ना, ऐसा। अब ये इसके अलोंग भी क्या करेंगे, थ्रू ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन थ्रू पी, पी के अलोंग ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी, है ना, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये ए हो गया और ये बी। तो बी को ऐसे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा इसको, इस तरह से पीछे प्रोड्यूस किया। तो ए हमने ऐसे कर दिया इसको, और बी हमने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से, ये हो गया ए डेल्टा ए, और ये ऐसे प्रोड्यूस किया था, इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, म्यू ये बी। हो गया हमारा म्यू बी, राइट। So this way we can show it. So lambda A and mu B, this is OB। डायरेक्शन वही रखा, देखो lambda A और mu B इस डायरेक्शन में पैरेलल ऐसे दिखा दिया, बट यू कैन टेक इट पैरेलल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट चलता है, बिकॉज लेटरल डिस्प्लेसमेंट करने में आप लोग हम लोग कोई पैरेलल ही रख रहे हैं उसको, बट यस हमको इसको इससे ज्वाइन करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बी को। और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू का उसमें क्या करेंगे बच्चों, म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हो सकता है ये वेक्टर पहले बड़ा था, उसको छोटा करना है, तो हम डेल्टा से लेमड़ा से मल्टीप्लाई करके उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लेमड़ा। लेमड़ा कैन बी 0.5, लेमड़ा कैन बी 1.5, लेमड़ा कैन बी 100, इट कैन बी एनीथिंग। Understood? Yes, sir. This concept you understand. बहुत beautifully it is shown here. So now you can really write OQ plus QP is nothing but OP. OQ plus QP is nothing but OP। हमारा triangular law of extension बोलता ही है कि OQ plus QP QP right is equal to OP। OP PO नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ओपी आ गया, हमारा आंसर आ गया भाई, है ना। सो दिस इज लैम्डा ए, हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, आंसर तो नहीं, मतलब पर्पस फुलफिल हो गया। सो दिस, सो वी हैव रिजॉल्व्ड दिस ए in terms of small a and small b vectors, this by multiplying this with a
real number lambda and mu. And we have shown it, we have resolved it by using which law? Triangular law of vector addition. So nicely you can write this. तो इस तरह से हमारा ये OP is equal to OQ plus QP है. So A can be written as equal to lambda A plus mu B. And this is called as the vector A is said to be resolved into lambda times of A and mu times of B along A and B respectively. So definitely यहाँ हम देख सकते हैं कि lambda जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 से थोड़ा छोटा होगा और ये जो म्यू का मैग्नीट्यूड है वो म्यू जो है वो डेफिनेटली उसका जो 1b से थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज ये डिस्टेंस ज्यादा हो रही है q to p. अंडरस्टूड. सो इट कैन बी एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? मोशन इन अ प्लेन एंड रिजॉल्विंग द वेक्टर्स. Yes, sir. अब वैसे हमको डायरेक्टली तो हम प्लेन में ही पढ़ रहे हैं, 3D में हमको जाना नहीं है, लेकिन 3D भी अगर समझ लेते हैं, हमारा जो सोच है, अगर पूरा अंतरिक्ष में हमारी स्पेस में सोच पहुंच जाती है, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अगर स्पेस में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, हमारा जो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो फॉर डूइंग दैट, फॉर अप्लाइंग दैट इन द 3 डायमेंशन स्पेस, वी कैन राइट, अगर 2 कंपोनेंट में हमारा ax और ay में हुआ है कंपोनेंट में, तो डेफिनेटली अगर 3 कंपोनेंट्स में अगर वो वेक्टर होगा तो क्या होगा? az लाना पड़ेगा, दैट्स ऑल. और az लाना पड़ेगा तो डेफिनेटली कौन सा कंपोनेंट आएगा? उसका यूनिट वेक्टर k आ जाएगा. तो इतना सिंपल हम लोग इजीली कर सकते हैं. तो अगर हमने a इज इक्वल टू ax प्लस ay लिखा है तो डेफिनेटली प्लेन में, तो डेफिनेटली बाय आवर सिमेट्री जो कि हम बिल्कुल समझ सकते हैं, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? ax ay आ गया तो थर्ड वन विल बी az इनटू k कैप. तो ये हम समझ भी सकते हैं, लेकिन इसी को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. लेट अस रिजॉल्व a इनटू 3 कंपोनेंट्स x y एंड z एक्सिस इन 3 डायमेंशन. सो 3 डायमेंशन में a है यहाँ पर. ये देखो, ये बात ध्यान से रखने की बात है, यहाँ पर ये एंगल अल्फा है. 3D में समझना है बच्चों, ये आपको 3D में समझना है. तो ये a जो कंपोनेंट, a जो वेक्टर है वो x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ डेफिनेटली ये गामा एंगल बना रहा है. तो दिखने में क्या लग रहा है आपको? अगर 2D में अगर इसको देखते हैं तो आपको लगेगा ये गामा एंगल बहुत बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और अल्फा एक्यूट है और गामा ऑब्ट्यूज है. लेकिन क्या ऐसा है? No. नो, ये जो दिखता है वो होता नहीं है. 3D में समझना है इसको, 3D में समझना है. ये मैं आपको बता दूं, 3D में कोशिश करूंगा. आई डोंट नो हाउ मच आई विल सक्सीड. सो दिस इज द एक्स एक्सिस. ये दिख पा रहा है आपको? ये दिख पा रहा है? ये मेरा जो मैंने परचेस किया था ना, दिख रहा है सर. ग्राफिक पैड. तो इसको मैं अभी मेरे को याद आया. देखो, तो ये ओ पॉइंट इज दिस इज ओ पॉइंट ना. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, राइट. तो ये जो एंगल अल्फा है, अगर ये वेक्टर ए ये दिखाता हूं मैं, सो दिस इज अ वेक्टर ए. सो यू कैन सी दिस एंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल, अब मैं इसको लिटा देता हूं इसके ऊपर एक्स एक्सिस पर. तो ये क्या एक्यूट एंगल ही है ना, एक्यूट एंगल ही है. और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये वाला. तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है? ये भी क्या है? एक्यूट एंगल ही है. इसको अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. और ये जेड एक्सिस है. तो यहाँ पर आपको दिख पाएगा, ये देखो, दिस इज द एंगल, दिस इज माय 4 फिंगर. कैन यू सी दिस एंगल? माय 4 फिंगर इज शोइंग दैट एंगल. Yes. This Yes, sir. angle is gamma. This angle is gamma. So in that वहां पर ये इतना अच्छे से नहीं समझ में आता है. तो this is the angle gamma. Understood? So this vector is coming out like this. So this vector A is coming out like this. So it is making alpha, beta and gamma angles with the x, y and z axis respectively. तो मुझे ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है, उससे हम समझ सकते हैं. सर मतलब इक्वल है क्या वो? इक्वल जरूरी नहीं है ना. इक्वल क्यों? इक्वल ये डिपेंड करता है कि वो कितना इंक्लाइंड है. कितना इंक्लाइंड, अभी ये इतना ज्यादा यहाँ पर ज्यादा इंक्लाइंड है तो डेफिनेटली वाई एक्सिस के साथ कम एंगल बनाएगा, या हो सकता है ना इसके साथ कम बनाए. तो ये तो कैसा इंक्लिनेशन है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये इधर हो गया तो इधर कम एंगल बनाएगा, इधर ज्यादा एंगल बनाएगा. अंडरस्टूड? सो दैट वी कैन नॉट से, दैट विल डिपेंड. बट आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट गामा जो दिख रहा है वैसा नहीं है. दैट इज ओनली माय पर्पस.
ओके, अंडरस्टूड, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ए एक्स आई हो गया, ये ए वाई जे एंड डेफिनेटली ए जेड के तो है ही उस डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट्स हो गए उसके, तो डेफिनेटली हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। वैसे यहाँ पर सर ने डिराइव भी किया है, ए एक्स ए कॉस अल्फा हो जाएगा, बी कॉस ए कॉस बीटा हो जाएगा एंड ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा हो जाएगा। द सेम थिंग वी कैन जनरलाइज, है ना, तीनों के लिए हो जाएगा। You need not to derive it again, but you can generalize like that only. So 3 equations we will get like this, 1, 2 and 3. So cos alpha is equal to ax upon a हो जाएगा, ax upon a, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, राइट? ऐसे ही cos beta is equal to ay upon magnitude of that a and definitely cos gamma is equal to az upon magnitude of a. और इन जनरल मैंने ये बात पहले ही बता दी आपको कि हम इन जनरल लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी बात है। एंड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा, डेफिनेटली वो भी ऐसा ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना? सो सेम थिंग यू कैन राइट। एंड पोजीशन वेक्टर आर कैन बी रिप्रेजेंट, कई बार बच्चों पोजीशन वेक्टर हमारा ये जो ए है ना उसकी जगह पर हम आर यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको R can be used as the position vector। तो R यूज किया जाता है तो कोऑर्डिनेट्स भी जो होंगे ना x, y और z, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर है। ये अगर डब्बा में कंप्लीट कर देता हूँ इसको, तो ये जो पॉइंट है वो कहीं तो भी यहाँ पर है और ये पॉइंट हमारा O है एंड दिस पॉइंट इज सी, आई विल शो यू दिस वे। ये देखिए दिस पॉइंट इज सपोज आई विल शो हियर आल्सो, ये पॉइंट मैंने मान लीजिए P दिखाया, तो ये पॉइंट P यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ पर है और O पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज O पॉइंट। आई कैन राइट आल्सो दिस इफ यू वांट, मैं आपको लिख के भी बता सकता हूँ, तो ये हाँ सॉरी ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे, आई विल हैव टू शो दिस वे या yeah. So this point O is here, O is here, right? O is here and this P point is here at this end, यहाँ पर है P point, right? ये यहाँ पर कहीं तो भी P point है ऊपर मान लीजिए, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा इसको, देखिए ये यहाँ से यहाँ x एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये ऊपर है यहाँ पर, now then it will go on y axis and then it will go on z axis like that, or it can go like this, x axis then y axis and then z axis, कैसे भी जाए वो। So to reach here that point we will have to go like this, then like this and then नीचे से ऊपर, या you can follow this path, ऐसे चले गए ऐसे चले गए ऐसे आ गए, कैसे भी जाओगे, but you will have to travel along the 3 directions, understood? Yes, sir. 3 डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये x ये y और फिर z चले जाओ यहाँ से ऊपर, या पहले ही ऊपर चले गए ऐसे चले गए ऐसे चले गए, you can go anywhere but you will have to travel। so this magnitude a जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो जो कैसे निकलेगा, ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो अंदर से ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आने वाली है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी। अगर मैं थर्ड से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, सो दैट विल गिव मी द वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। जोड़ के दिखाओ मैं आपको, इतना बड़ा मेरे पास अभी स्केल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव, आप समझ सकते हैं ना बेटा, इसको मैं किससे ऐड करूंगा, ऐसे आई विल गो लाइक दिस, सी कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the magnitude of A, or that vector A will be pointing out like that, and that shortest distance diagonally हम बोल सकते हैं इसको। so ये हमारा इस तरह से आ रहा है अंदर से, है ना, 3 डायमेंशन में। so अब इसी को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम ax, ay और az नहीं बोल करके x, y और z बोलते हैं, because this distance is x, this distance is y and this distance is z। तो हम उसको R इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल देंगे। तो ये हमारा तरीका होता है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। कभी ए बी सी दिया हो तो आपको ए एक्स ए वाई और ए जेड लेने हैं, बट अगर पोजीशन फैक्टर की बात चलती है तो हम लोग आर यूज करते हैं, और उस केस में हम लोग
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो होता है वो उसको हम एक्स वाई और जेड यूज करते हैं. सो दिस वे इट इज दैट. सो एक्स वाई एंड जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर along x axis, y axis and z axis. So this distance is x, this distance is y and this distance जो ऊपर की तरफ चला मैं वो हो गई हमारी z. तो ये क्लियर हो गई बच्चों बात आप लोगों को. और any doubt is there? Alpha, beta and gamma are the angles in the space. They are the angles between the pair of lines which are not coplanar. Coplanar lines के बीच का नहीं है. ये a जो है ये a और x के बीच का एंगल है, ये y और a के बीच का एंगल है और ये a और z के बीच का एंगल है गामा. सो दिस मच यू कैन सी. और ये आपको डिराइव नहीं करना है, वैसे आप याद रखिएगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है. आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं. यू कैन प्रूव इट. टेक इट 1 इक्वेशन, दिस इज 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन. जस्ट स्क्वायर एंड ऐड इट. Square and add the corresponding sides quickly. You can find out. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. So it will be ax square upon a square plus ay square upon a square plus az square upon a square. I think we can do mentally. Need not to write also. Orally you can do. तो ऊपर क्या आ जाएगा ax square plus ay square plus az square. नीचे आएगा a square and a square is nothing but ax square plus ay square plus az square. So it will be ultimately डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. 1. हो गया. कैन यू डू दिस मच? Yes, sir. स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐड कर दीजिए. सो नीचे एलसीएम आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और वो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा. So you can remember this. वैसे it will not be very much useful for numerical, ज़्यादा आते नहीं है, but you should know this है ना, कि अगर 3D में अगर ऐसा होता है तो ये हम कर सकते हैं. So I think ये analytical method पर हम बाद में जाते हैं 2 वे पर, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको अब ब्रेक दे देते हैं. So I think this much is clear to all of you. So shall we leave now? So thank you very much for the interaction which you have done with me. Thank you very much.